Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to understand question number 7. The chapter which we are related with is consignment account. आज थोड़ा डिफरेंट काम करते हैं. सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं. You are required to prepare consignment account, Zishan account and goods sent account. So first time we are going to make goods sent on consignment account. It's very simple because you do know in journal entries there are only two entries where goods sent on consignment is also present. So just mentally prepare, instead of two we are making three accounts. So let me show you. This is our journal entry where we already we are making consignment account. Then today we will be making consignee account as well. Consignee account we will be making, and a different account we are going to make is goods sent on consignment, for which we can prepare our ledger in this way. Over here we will make goods sent on consignment. So this was a brief introduction of difference present in this question. Otherwise everything is same. We have already done all entries. There is no difference. There is nothing new in this question. So let's begin. On 1st July 22, sends 300 cases of medicine to Zishan on consignment. So here we have P and company. So first of all we are going to put name of consigner. The name is P and company. So just point out P and company, and we have sent these goods. तो पहले एंट्री कर लेते हैं. Goods sent. उसमें क्या है? Consignment to goods sent on consignment. और क्या कह रहा है वो? 300 cases हैं and the cost of each case is 2000. So over here you can calculate the cost. 300 cases and each case is costing 2000. यहाँ गौर से देख लीजिए. 300 and 200 is the cost. Over here we will be calculating 300 cases multiply cost of each case 2000. So similarly we are putting amount over here. So it's 6 lakh. First entry is completed. P and company incurred following expenses. P is consigner. So just as usual, expenses of consigner entry we make consignment to cash, and over here we don't need this. So consignment to cash, expenses of consigner, and you can see there are two expenses, 1500 or 900. You do not need to mention the names of these expenses. Simply 1500 first expense and second expense is 900. Just put it over here. So guys, in this way your second entry is completed. After expenses of consignor, we have 200 cases were sold by Zishan. So account sale entry arrived over here. Gross sale or account sale you may write. क्या करते हैं? कंसाइनी, और उसका नाम पहले पढ़ लेते हैं. Who is consignee? Zishan. So you do need to put his name. Zishan. सही लिखा? Okay. So consignee to consignment your entry. और यहाँ हम साथ में फॉलो अप करेंगे कि सेल की प्राइस कितनी है. देखिए सोल्ड 200 केसेस. अब इसमें दो बातें आपको नजर आ रही हैं. टोटल केसेस वर 300 एंड 200 केसेस वर सोल्ड. सो व्हाट डज दैट मीन? 100 केसेस अभी तक नहीं बिके. सो यू विल हैव टू प्रिपेयर स्टॉक अकाउंट. मगर अब हम सेल की एंट्री कर रहे हैं तो 200 केसेस 4000 ईच. सो लेट्स कैलकुलेट. 200 cases were sold and 4000 was sale price of each case. So
You can calculate the price 200 multiply 4000 क्या चीज है? Price of each case, sale price of each case. ग्रॉस सेल भी हो गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ जिशान, जिशान इज कंसाइनी। आप देख रहे हैं कोई एंट्री भी डिफरेंट नहीं हो रही, सेम एंट्रीज चल रही हैं। सो एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, और क्या एंट्री करते हैं? कंसाइनमेंट, और आगे जिशान, वन सेकेंड, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, और कंसाइनी कौन है? जिशान। सो कंसाइनमेंट टू कंसाइनी एक्सपेंसेस कितने किए? 2400, और कुछ एक्सप्लेन नहीं किया कि इस एक्सपेंस का नाम क्या है। तो थोड़ी सी आसानी हमें और हो जाएगी, बिकॉज एक्सपेंस हैज नॉट बीन डिस्क्राइब्ड। सो एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी भी गए। ही सेंट एन अकाउंट सेल विच रिवील्ड दैट ही चार्ज 5% ऑर्डिनरी कमीशन, 10% डेल क्रेडिट कमीशन। सो अगली एंट्री बिल्कुल सेम हमारी रूटीन चल रही है। कमीशन ऑफ कंसाइनी, और उसकी एंट्री भी आपको पता है, सेम आप पिक कर लें। जो एक्सपेंस की एंट्री है वही कमीशन की एंट्री है, बस कैलकुलेशन अब यहाँ पर करते हैं। और उसने कमीशन के लिए क्या बताया? 5% एंड 10%, टोटल 15% हो गई। और चूंकि इस क्वेश्चन में भी बैड डेट्स का कोई मसला नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट सी टोटल परसेंटेज ऑफ कमीशन 5 एंड 10, 15%, और सेल की अमाउंट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड। सो एट दिस स्टेज वी कैन कैलकुलेट। देखिए सेल की अमाउंट कितनी है? 8 लाख, ये हमने यहाँ पर लिखी हुई है। और हम सिंपली वी विल बी कैलकुलेटिंग 15% ऑफ डेप्रिसिएशन। इसकी अमाउंट यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। बताएं जरा, 8 लाख क्या चीज थी? टोटल अमाउंट ऑफ सेल, और 15% वाज कलेक्टिव अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो 1,20,000 8 लाख के ऊपर, तो बड़ी अमाउंट बन गई कमीशन की। देन ही सेंट अ बैंक ड्राफ्ट। ही कौन है? वी आर टॉकिंग अबाउट जिशान। तो जिशान ने बैंक ड्राफ्ट सेंड किया है। इसका मतलब है कि आपके पास पैसे आए हैं। सो बैंक ड्राफ्ट रिसीव्ड, इसकी दोनों तरह से एंट्री आप कर सकते हैं, चाहे आप कैश लिख दें चाहे बैंक लिख दें, क्योंकि बैंक है, हम बैंक को शो करवा देते हैं। सो कहां से ये पैसे आए? बैंक टू कंसाइनी, कंसाइनी इज जिशान। सो कितने का बैंक ड्राफ्ट हमें मिला है? 1,80,000 उसने पैसे भिजवा दिए हैं बैंक के थ्रू। सो इस तरह से ये एंट्री भी आपने साथ में कंप्लीट कर ली। यू आर रिक्वायर्ड, चलें जी, क्वेश्चन तो खत्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू मेक स्टॉक। उसका फार्मूला हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर। अब जज करने की देर है। टोटल केसेस वर 300 एंड 200 केसेस वर सोल्ड। तो अनसोल्ड यूनिट्स कितने हुए? 100। ये फार्मूला है, यहाँ पे आप पुट करेंगे 100 अन यूनिट सोल्ड, और उनकी इनवाइस प्राइस, इनवाइस जिस प्राइस पे आपने माल भेजा था। सो प्राइस, इनवाइस प्राइस इज 2000। सो जस्ट पुट 2000 ओवर हियर। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? स्टॉक। उसका फार्मूला क्या है? इनवाइस ऑफ अनसोल्ड। यूनिट अनसोल्ड 100 थे, इनवाइस यानी जिस कीमत पे माल भेजा 2000 थी। सो 100 multiply by 2000. In this way stock is calculated. अब हम expenses of consignor पढ़ते हैं। Look at here, expenses of consignor 2400। ये दोबारा चेक कर लेते हैं, इतने थोड़े से expense हैं। Expenses of consignor 1500 and 900, okay, just 2400 वही। and what you will do, multiply by unsold। unsold unit कितने हुए वो पहले ही हमने मालूम किए 100, और टोटल कितने थे? 300। दिखा भी देता हूं आपको। देखिए टोटल 300 थे, 200 सेल कर दिए थे, 100 अनसोल्ड एंड 300 टोटल। So in this way, proportionate expenses of consignor also calculated 2400 and multiply by 100 divided by 300. Alright guys, in this way stock is calculated. आपने ये तीनों अमाउंट्स को जमा करना था। अब आप सोचेंगे why we have not added consignees expenses
बिकॉज कंसाइनी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड, वो आए नहीं इसलिए हमने लिखा नहीं। अब आप जो स्टॉक है उसकी एंट्री कर दें, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, और इसकी एंट्री क्या करेंगे, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। अच्छा, आपने एक चीज और भी आज फील की होगी, मैं कंसाइनमेंट टू सिटी नहीं लिख रहा, वो बस समझाने के लिए फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस में कर लिया था। आप लिखें तो बेहतर है, ना लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट वी हैव कैलकुलेटेड 2,08,000, so just put amount on both sides। स्टॉक भी कैलकुलेट हो गया। अब इसका मतलब हमारे मसले खत्म हो गए हैं। वी आर नाउ रेडी टू स्टार्ट मेकिंग कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे पहले कंसाइनमेंट इज प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड विद 6 लाख अमाउंट, और आप देख रहे हैं इसकी ऑपोजिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वही आप यहाँ लिख देंगे और इस तरह से आपकी पहली एंट्री कंप्लीट हुई। सेकेंड एंट्री में चेक करें, कंसाइनमेंट अगेन प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड, हाउ मच अमाउंट 2400, और इसकी ऑपोजिट साइड पर क्या लिखा हुआ है, टू कैश, सो वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। टू एंट्रीज आर completed, now see what next। Consignment, look at here, consignment is present on credit side, so we will go to credit side, how much amount, 8 lakh you will be putting, and what is written on opposite side, opposite side to consignee is written, and you will be posting over here just with one difference, word buy would be included। Okay जी, 8 lakh entry is completed। Next, consignment again present on debit side, ये तो कर लिया हमने दो दो दफा। कंसाइनी के एक्सपेंसेस 2400, ये पढ़ने की बात है। अच्छा, it's just coincidence, expenses of consignor are also 2400 and consignee's expenses also 2400। I was doubtful how could be possible both expenses are same, तो गलती देखने के लिए गया था, but both expenses are 2400। So once again you will be putting 2400 on debit side, और इसकी opposite side पर क्या लिखा हुआ है, consignee, so you will be putting consignee in particulars। So guys, in this way our entry number 4 is also completed, 2400। Next, consignment is present on debit side, commission की entry है, so you will go to debit side and how much amount you will have to put, 120,000। opposite side पे वही consignee लिखा हुआ है तो आप put कर दें। So in this way 120,000 completed। Next, consignment not present, leave it out। Next, consignment yes present on credit side, तो आप यहाँ पर आइए credit side पे, और how much amount, 2,08,000 आप यहाँ पर put कीजिए, और इसके रेफरेंस के लिए ऑपोजिट साइड पे क्या लिखा हुआ है, स्टॉक, और सेम आप यहाँ पुट कर दें विद एन एडिशनल वर्ड दैट इज बाय। नहीं जी, आपका स्टॉक भी कंप्लीट हो गया। अब चेक करते हैं और कुछ खत्म हो गया। अब हम अपने कंसाइनमेंट के लेजर को बैलेंस करते हैं। फॉर दैट फर्स्ट स्टेप इज टू टेक सम ऑफ बोथ साइड्स। तो सम ऑफ डेबिट साइड रेडी, नाउ टेक सम ऑफ क्रेडिट साइड, दैट इज ऑल्सो रेडी। अब देखिए कौन सी छोटी साइड है, डेबिट साइड, तो इसका मतलब है इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंस। कैलकुलेट करते हैं, लार्जर अमाउंट इज 10 लाख माइनस स्मॉलर अमाउंट इज 7 लाख, एंड यू विल हैव टू राइट इट। एक दफा दोबारा कर लेते हैं, कोई गलती ना हो जाए कहीं। सो 10 लाख इज द अमाउंट माइनस 724,800 is smaller amount 276,000, and you can see that our profit on consignment is also 276,000। So put to profit on consignment 276,000, इसकी एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो प्रॉफिट ऑन consignment
क्या एंट्री करेंगे? कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे है ना, सो आप कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट एंड हाउ मच प्रॉफिट यू हैव कैलकुलेटेड। देखिए ये 276,000 प्रॉफिट यू हैव कैलकुलेटेड, उसको यहाँ मेंशन कर दें। इस तरह से 276,000 वाली एंट्री यानी प्रॉफिट वाली एंट्री भी कंप्लीट होगी। इसको हम जरा हाईलाइट कर देते हैं कि ये प्रॉफिट की एंट्री है। ऑलराइट गाइस, अब अगला काम जो है वो कंसाइनी का, जिशान का लेजर बनाना है, गुड सेंट का लेजर बनाना है। वो हम कई दफा बना चुके हैं। सिर्फ कंसाइनी को जज करना है आपने। फर्स्ट एंट्री कंसाइनी इज नॉट प्रेजेंट, सेकंड नॉट प्रेजेंट, देन थर्ड सेल की एंट्री मौजूद है, कंसाइनी इज प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड। तो आप डेबिट साइड पे सेल की अमाउंट 8 लाख लिख दें और रेफरेंस के लिए ऑपोजिट साइड पे क्या लिखा हुआ है? टू कंसाइनमेंट। तो वही रेफरेंस आप यहाँ नोट करवा दें, अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से पहली कंसाइनी की एंट्री हमारी कंप्लीट हुई। और अब आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कंसाइनी कहाँ आ रहा है। अगेन लुक एट हियर, कंसाइनी इज प्रेजेंट ऑन क्रेडिट साइड, तो आप क्रेडिट साइड पे आए, यहाँ पर 2400 आप पोस्ट कर दें। कंसाइनी वाज प्रेजेंट ऑन क्रेडिट साइड, तो ऑपोजिट साइड पे ये क्या लिखा हुआ है? कंसाइनमेंट। सो यू विल बी राइटिंग consignment as reference with an additional word of buy। तो आपकी दो एंट्रीज कंप्लीट होगी 2400। आगे चलते हैं, जिशान कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। अगेन कंसाइनी इज प्रेजेंट फॉर इज कमीशन, सो यू विल गो टू क्रेडिट साइड। 1,20,000 इज प्रेजेंट ऑन क्रेडिट साइड। रेफरेंस के लिए ऑपोजिट साइड पे कंसाइनमेंट है, तो आप यहीं से ही चूज करके कंसाइनमेंट लिख दें। 120 भी हो गई। अब यहाँ चेक करें, कंसाइनी अगेन इज प्रेजेंट ऑन क्रेडिट साइड और आपने देखा 180,000 इज प्रेजेंट क्रेडिट साइड और ऑपोजिट साइड पर क्या लिखा हुआ है? बैंक। सो यू विल बी राइटिंग बैंक, बस एक एडिशनल वर्ड साथ मिलाना है बाय। इस तरह से 180 वाली एंट्री भी कंप्लीट हो गई। बस आगे कुछ नहीं है। तो कंसाइनी का लेजर भी कंप्लीट हो गया। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट balance। So as first step you will take sum of both sides, that has been done। अब छोटी साइड ये वाली है, यहाँ पर बाय बैलेंस आप लिख दें। वैसे वो कैश होता है जो उससे वापस मंगवाना होता है। 8 लाख लार्जर अमाउंट, सब्सट्रैक्ट करें स्मॉलर अमाउंट 302,400। सो गाइज इन दिस वे ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट होगी। अब बस लास्ट आपने अच्छी तरह दिमाग खोल के देखना है। आपने सिर्फ अब गुड सेंट की एंट्री कंप्लीट करवानी है। ओके, और उसके लिए आपको पता है कि सिर्फ दो एंट्रीज हैं। एक आपने लास्ट में एंट्री करनी होती है और मैंने इसलिए आपसे कहा था कि आप शुरू में ही लास्ट में जाके एंट्री कर दिया करें। तो वो लास्ट एंट्री कौन सी है? कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट। और इसकी एंट्री क्या करते हैं? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। लें, ये भी एंट्री कंप्लीट होगी और आपको ये भी पता है जो फर्स्ट एंट्री की अमाउंट है, सेम अमाउंट विल बी राइटिंग ओवर हियर। मैंने आपको क्यों कहा था कि ये कुछ थोड़ा सा आसान है, इसलिए कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंट्री ही दो हैं और दोनों की अमाउंट भी सेम है। आप चेक करें, सबसे पहली एंट्री में गुड सेंट इज प्रेजेंट ऑन क्रेडिट साइड, तो आप क्रेडिट साइड पे जाएंगे, वहां पर ये जो क्रेडिट साइड वाली अमाउंट है इसको आप पोस्ट कर दें और ऑपोजिट साइड पे क्या लिखा हुआ है? कंसाइनमेंट। तो यहाँ पर बाय के वर्ड के साथ कंसाइनमेंट लिख दें पहली एंट्री। और लास्ट एंट्री के अंदर भी गुड सेंट मौजूद है। गुड सेंट इज प्रेजेंट ऑन डेबिट साइड, तो आप यहाँ पर डेबिट साइड पे 6 लाख पोस्ट कर दें और ऑपोजिट साइड पे क्या लिखा हुआ है? टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो जस्ट राइट डाउन ट्रेडिंग अकाउंट ओवर हियर। चूंकि ये दोनों साइड इक्वल होती हैं, अब आपको बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं है।
आप सिंपल बस टोटल दोनों साइड्स पे लिख देंगे और यहाँ का जो टोटल है दैट इज 6 लाख और चूंकि उस साइड का भी टोटल वही है, इस तरह से गाइस यू हैव कंप्लीटेड योर लेजर फॉर गुड्स एंड। ये सिंपल सा एक लेजर था, दो एंट्रीज होती हैं, दे आर ऑलरेडी इक्वलाइज्ड। अच्छा जी, शो केस ऑफ दिस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। इसको जरा प्लीज ध्यान से कर लीजिएगा, बाकी सब चीजें पुरानी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। If there is any difficulty, you are very open to share your problem. I will humbly be trying my best to answer your question quickly. So thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.